Oh. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरुपुष्यामृत होने के कारण तथा 31 का जो एक बहुत अजीबोगरीब त्योहार बन गया है, क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या दुखी क्या सुखी, क्या बालक, there are wild resolutions made for only to be broken. We can also resolve to get back to our own essential self unconditionally, reducing the dependence on any of the activities so far, whether they be likening to us or be of no choice to us, irrespective of the same. I was little apprehensive while pushing this up, sensing the lesser presence. Hence, I also gave a tickling this morning, and those who acknowledged are present over here. This year, friends, I'm just buying some time because a very important stanza others would miss. So in a hopeful wisdom, I'm just buying some 4 or 5 minutes, or else we'll continue. I am making some resolutions for myself in open, in some of my groups also, so that others can be a mirror for us. And I'm telling them that if I break this, if you find breaking me, you have the right to either reprimand or to at least joyfully correct me ki, yes. And those 3 simple internal and 3 simple external resolutions are: I'm stopping wishing birthdays, happy birthday. I'm always pained when we talk about Ajanma, Anadi, because the moment we make, and I am the most conscious person who, on the 10th of May, when people wish me, I really feel like I am Martya. The rest of the 364 days, I feel Amartya. So I'm just on an experimental basis. Whether it really makes some difference or not will be a question. And even if others wish me on my birthday, I will not respond to them because we can't stop others. But I am not going to wish anybody this year. I mean, luckily in Bhagavad Gita, we have a group, we have not made this a practice. But I am very sure you must be having closer relatives and n number of persons. At least, friends, almost every day you have somebody to wish. Now you might as well say, sir, why can't we take this in a diviner way? Yeah, keep on doing this diviner ways. But there are many associated ills with all this. Let's better not speak about them. I'm very sure we'll be 3 and God, so we'll be 4 today. This is external. Then I'm not going to speak ill of anybody in public, even a 0.001%.
which happens normally with some kind of, this is again an external Bahiranga sadhana. And the third one, which is maybe important or not, I will not give lecture to people. I have got the habit of lecturing people around. Now you might as well say, sir, why are you declaring this? Friends, when you declare this, I read it somewhere, you become more conscious. Because suppose I declare in 10 groups and I break the promise, indirectly I'm duping 100 people. You're getting my point. So today, if I'm declaring before 2 of you, and if I break that, and if my morals are alive, I'll definitely feel that I have breached people around. And the 3 subjective resolutions: love all intensely, most important, without any conditions. Second resolution, the inner resolution, keep smiling. Very simple. And the third one is be simple. Friends, let's not have, if we have these 3 and 3-6 targets which I just mentioned, I am talking for myself and the perceptions of my own comprehension and apprehension. I think the chapter which we are dealing with right now, and Lord Krishna is enlightening us, we can be better moving towards our inner self by this. So I repeat, I'm stopping giving birthday wishes because I have seen that I have to do that more than 200 times a year. At least I don't send that digital bouquet readily available. Instead, if you can really make a bouquet and send, it is much better than sending a digital bouquet. So we have now slogans, friends. If somebody is dead, we have the typical, so that Atma, rest in peace, and RIP, all false words. As if you are blessing the soul. So without mentioning all of them, all these traditions this year I have subjectively decided not to follow them at all. I remember the childhood where only my mother used to wish, because my father and grandfather and grandmother never remembered anybody. They were blessed anybody's birthday, including themselves. So if we have to convert this in-laws to in-love relationship and this love all serve all, I think we'll have to get rid of many things in life which are unwanted, and we are so busy for nothing. Today I received 2-3 WhatsApp. Isn't it, friends? If you really find, and it was COVID also, and for those, again I repeat, where the Roji Roti was not a problem, they probably thought that they were busy all through year. But if you find in what you were busy, you will yourself realize that there are many things wanted for us to cut down on, so that we can possibly move on toward the inward journey fearlessly. So with this, friends, I think I bought time. We need to begin. It's already 6:12. So we have to complete the first stanza today. We have hardly completed 3 words and not the stanza, and in a sequential way. But as we are moving towards asammudaha sthiti, because of, as you saw it quite poignantly and notice, I told you to interchange the words also, and we did so, and you have realized for yourself that because of those, you have got freed from, and you are a real kind of asammudaha, where you are jnana and buddhi interchanged, buddhi yukta gyan or gyan yukta buddhi. After this asammudaha stage, now we move toward kshama. As I told you, there are 2 approaches in life. One is at the individual level, which we normally perceive. God should wish us happy birthday to you. A day should come, and He will do that only when He will find us all through 365 days happy, irrespective of the outer circumstances. And trust me, friends, all 4 of us will get a vision of God
maybe on our birthday, physical birthday, and saying happy birthday to you. Why can't we dream that? So one is individual perception and another is as world looks at you or God looks at you, looks upon you. And that decides the quality of life. Suppose, friends, there is a rotten rat in 10 cross 10. Even with this concept of my words, probably you are smelling it in a 10 cross 10 room. But if the same is, there are so many birds and animals dying in space, friends, and still the space has the fragrance. It's not affected. So that is how we have to expand our container. And that is possible with pure knowledge and pure intellect. The message we drew in last 2 lectures was, since we are too little as of this moment, the world is too much for us. So when we are journeying towards ourselves, it's a process of converting that too littleness, and then we grow, we expand, and the world becomes too little. See, friends, in the first case, that is when world is too much and you are too little, you will only ask why me. जब तक हम why me के कॉन्सेप्ट में है, सारे सफरिंग्स मुझे ही क्यों, तब तक समझ लेना कि we are too little and the world is too much. एक बार किसी ने मुझे पूछा ये why me, शायद मैंने बताया लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा. 1-2 बार मैंने जवाब टाल दिया था. वो बार बार पूछते थे, भगवत गीता के आधार पर बताओ, why I am suffering, why me? Then I told him jokingly, why not you? He got annoyed. He said, I am coming towards you for a solution and you are making majak of me? I said, no, I have answered your question. हर सवाल का सवाल ही जवाब होता है. कई बार बोले how? I said, look, I said, why not you? Now, if you are too little, you will say I am insulting you. But if you have heard, and he was a very regular member of Bhagavad Gita discussions, I said, then I have answered your question. Why not you? That is how your knowledge will be strengthened. That is how you will be permanently with God. Gita says that, Anityam asukham lokam imam prapya bhajasva mam. Anitya hai और असुखम है. So why you? Why not you? Because God wants you to be with Bhagavad Gita. Friends, he understood, he appreciated. But again I am saying, when we are too little, that too littleness will be catching us, especially in our solitude, in our moments where we are alone. It will grip us and move us further down to our despondency, dejection, disheartenment. And Bhagavad Gita exactly does not know it. देखो महाराज, एकदम क्लियर है. जिस दिन हमारे इस प्रकाश की भनक पड़ेगी, समझ लेना भगवत गीता उतर रही है जिंदगी में. तब तक वो बुद्धि का खेल हो सकता है. हजारों नए साल आएंगे, नए साल जाएंगे. पहली बात, नया क्या है, इससे नया नूतन क्या है? हमारे में परिवर्तन है, वही नया है. ये भी समझ रहा है सबको, लेकिन कितना हाइप है देखो.
मैंने खिड़कियां लगाई, पर्दे लगाए और कुछ कुछ लगा दिया, इतने बाहर आवाज आ रहे हैं ताकि आप लोगों को कम से कम तकलीफ ना हो। हमारे दोस्त यहाँ है, हमने 31 का भजन इसीलिए चालू किया था। बड़ी बेहतरीन आइडिया थी और चल रही है अभी कई शहरों में। जहां जहां जा रहे हैं हमारे दोस्त, वहां वहां वो निर्माण कर रहे हैं। कितनी अच्छी आइडिया है दोस्तों। भगवान नाम आज हम ज्यादा से ज्यादा ले, क्योंकि बाहर हाइप है, टीवी पे हाइप है। 10 मिनट बात करने का 1 करोड़ रुपए लेते हैं लोग। तब हमें इकोनॉमिक्स पे डिफरेंस नहीं लग रहा था। लेकिन कोई सन्यासी अगर, सच्चा सन्यासी अगर दूसरों के दिए हुए धान्य पर जीवित रहता है तो उन्हें पैरासाइट कहला जाता है। अरे अरे, इतना तो हम खाना छोड़ते हैं। कित्येक लोक पानात ढकलून देतात तो असं वरण भाजी मी पाहिलाय, इतका माज आहे। कठीण आहे। आणि ज्या वेळेस आपण असे कार्यक्रम बघतो तेव्हा आपण त्या पापाचे सहभागी आहोत, नीट लक्षात द्यायचं। डायरेक्ट, देर इज डायरेक्ट सीन। आणि आपल्या गीतेच्या अध्ययनाप्रमाणे आपण तेवढं डिआयडेंटिफाय होतोय बीएमआय कडून, सॉरी आयडेंटिफिकेशन वाढतंय आपलं। तो काही का कोपऱ्यात शाहरुख खानला सांगू दे, काय करायचं आपल्याला। कुठेतरी काहीतरी आपल्याला रिझोल्युशन्स, मी 10व्या अध्यायाच्या अध्यायावरच आता बोलतोय, हे आता करायलाच हवेत। आणि तुम्ही करा किंवा मी करा, आपण एकमेकांना सांगत नाहीये, आपण करायला हवेत, हे आपण देवाच्या उपस्थितीत बोलतोय। आज मला 10 ठिकाणाहून निमंत्रण होती, आमंत्रण होती। त्यातल्या 7 ठिकाणावर बाटलीचं झाकण उघडलं गेलं असतं। 2-3 ठिकाणावर तेवढा सन्मान करून ते म्हणाले भाषण द्या। म्हटलं भाषण तर आज बिलकुल नाही। आमच्या मित्रांबरोबर 6 ते 7 राहून नंतर अगदीच आहे। आता लोकेशन आपण आपल्याला सगळ्यांना कमी करायला हवी ना। अरे म्हटलं तारीख बदलते रे, काय आहे, कशाला गडबड एवढी, काय बदलणार आहे सांगा ना। आणि हे आनंदाने, चिडून नाही। कार्यक्रम करायला नाही मिळाला, नाही गेला, कोविडमुळे बरेच लोक नाराज आहेत, नेहमीसारखं धामधूम करता येत नाहीये। कोविडने खरं खूप शिकवलं, पण ते मला असं वाटतं की स्प्रिंग प्रिन्सिपल सारखा उफाळून आलेला आहे आणि लोक अजून नाही। कारण काय, परिस्थिती अशी एवढ्यासाठी चिघळते आहे की स्वतःकडे जाण्याचा आपला मार्गच आपण प्रशस्त केलेला नाही। वी आर नॉट मूव्हिंग टुवर्ड्स आवर सेल्स, अँड दॅट इज द रिझन वेन ऑब्जेक्टिव्हिटी इज शंटेड, वी आर मोर इन फॉर दॅट ऑब्जेक्टिव्हिटी। आज याची चर्चा पूर्ण होणार आहे आणि संपूर्ण तो बुद्धी ज्ञानम समूह क्षमा सत्यम दमशम सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च, हे आज पूर्ण करायचं आपल्याला। कारण पुढचं सगळं लाईनीत आहे। त्यामुळे आपल्याला वी हॅव टू गिव्ह अप आवर ऑब्सेशन ऑफ अंडरस्टँडिंग द ऍब्सोल्यूट, होल्डिंग ऑन टू द रिलेटिव्ह। वाह, सगळा कॉन्सेप्ट नीट बघा। रिलेटिव्हला घट्ट, रिलेटिव्ह म्हणजे नातलग नाही, रिलेटिव्ह लाईफ, त्याला घट्ट कवटाळून आपण ऍब्सोल्यूटला शोधण्याचा जो वायफळ निष्फळ प्रयत्न करतो ते हास्यास्पद आहे। इन्फायनाइटला धरून फायनाइट नीट समजू शकतं, पण फायनाइटला धरून इन्फायनाइट कधीच समजू शकणार नाही। साधं मॅथमॅटिक्स आहे। आहे की नाही गंमत सांगा। आणि म्हणून मग ते काय होतं, दिस नॉलेज ऑल्सो is confined to our cozy air conditioned rooms where we at the most appreciate it at the intellectual level but not able to transcend the intellect, and therefore spirituality remains quite at a distance.
Because spirituality is subjective. And we can't hold to the relative references of life. Because all relativity has a knack of changing. See, friends, science changes. I did one research for reduction of chromium 6 plus to chromium 3 plus and was successful in water treatment. The technique got changed in the sojourn of 30 years. I published paper in 1988. After 32 years, I got some new reference which has changed the technique. Science has a knack of it. Do you mean I did a wrong thing? No. It was right that time. Now this is a problem. People have started publishing papers on COVID. They are being honored because it is the need of the time, need of the hour. But how relative it is, you just say, and now because of the second strain, they will have comparative measures and whatnot. Statisticians will be very happy, though we are all unhappy. So friends, we are lost, we get lost in this objectivity of life. Bhutanam bhavaha. If we understand that all these expressions are from God alone, then probably we will not be moved by these deviations or the pairs of opposites or the relative references. But it is very difficult, as I told you, to keep that भाव. कावळा दिसल्यावर कावळ्याचीच रिॲक्शन आपल्या डोक्यात येते आणि मोर दिसल्यावर मोराला बघून म्हणा ना मग कधी, अरे किती घाणेरडा मोर आहे. मग ऍटलिस्ट यू आर एस्टॅब्लिशिंग अद्वैत इन द बॅड सेन्स. कावळ्याला घाण म्हटलं ना, मोरालाही घाण म्हट. चल, अद्वैतम दर्शनम ज्ञानम. आणि सहज सुलभ आहे, स्वाभाविक आहे. अनेक लोक मला विचारतात, सर हे स्वाभाविक आहे, हे कसं काय करायचं? या स्पिरिच्युअलिटी तुम्ही सगळंच चांगलं आहे म्हणता. नहीं ना, तसं नहीं म्हणत. दूसरा रेफरेंस ऐसा है कि जो जैसा है वैसा स्वीकार करो, वो नहीं जम रहा है ना. स्पिरिच्युअलिटी ते कधीच सांगितलं नाही की कावळ्याला बगळा बना म्हणून. बगळा बगळा आहे, पण बगळा बगळा आहे एवढंच, पुढे काही जाऊ नका. हॅव परसेप्शन्स, डोंट हॅव प्रोजेक्शन्स. वा, है ना, सोपं आहे. आता आपण 4 जण आता अभ्यास बाबांच्या, आपल्या गुरुच्या, देवाच्या, कृष्णाच्या चरणी बसून करतो. आणि जसं जसं रिपिटेशन होत आहे आपल्याला घनीभूत, ideas are getting crystallized, and because of that crystallization it is becoming crystal clear for all of us. So friends, remember, let's start moving from too little to a bigger version and make resolutions for you today and follow them. That's it. I found that what are the obstructions. I declared on the groups also. Let that be a separation. And then there is anxiety, conflict also. Arey yaar, we keep remembering our so-called closer ones. अच्छा 25 मार्च को बर्थडे. मैं कितने बार दोस्तों को पूछता हूँ, भाई साहब बता दो, माफ कर देना, मुझे याद नहीं आता, मुझे मेरा भी बर्थडे याद नहीं आता. It's a fact. It's a fact. Good or bad, I'm not deciding or not telling. क्योंकि someone will be hurt, इस फीलिंग से अपन उसके मेमोरी करते रहते हैं. हाँ 25 मार्च, मेरा कोई नहीं है 25 मार्च, ऐसे बोल रहा हूँ. And we are, as I was telling you, we are afraid of satsang because we feel that, whatever we are holding to will be lost. Our positions, our qualifications, our ex-positions. I still get pride in saying ex-scientist. Trust me, I use it. Let's be very honest today. As the mass is bigger, I am little dishonest. As the mass is smaller and smaller, I'll be more honest. In a lighter way, I'm saying this.
So if I extend this principle, when I am alone, I should be the most honest. And that is how we are closer to ourselves all the time. So all our holdings, you know, mutual funds में वो holdings कहते हैं, they get shattered. आज एक दोस्त आए थे हमारे पास, बोले दे नो माय सिचुएशन, जैसे अतुल तू तेरे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं मैं 2021 का। मैं बोला तू क्या करेगा प्लानिंग, जिसको मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाता हूं, तू करके क्या करेगा? 40 साल से लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। जब तक मैं खुद का मेरा प्लानिंग नहीं करूंगा कि कुछ नहीं होने वाला है। और प्लानिंग मतलब इसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, उसके बाद भगवान की ग्रेस भी डिपेंडेंट है उसके ऊपर। आप भले ही प्लानिंग करोगे, लेकिन वो सोर्स में उतना आना तो चाहिए। So we are sticking to our holdings, and hence we are afraid of striking. Trust me, our resolutions are so very different. Trust me, friends, so very objective, and so family conscious and family oriented. You have to decide whether these resolutions will take 2 steps up towards your inward journey or not. Whichever they may be, they will be different from different people around, if at all, because we are moved by this date. Otherwise ये डेट कोई स्पेशल नहीं है, आप 5 जनवरी को भी रिजोल्यूशन कर सकते हो, या कोई रिजोल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अनलेस यू आर इन सॉलिट्यूड, और दरवाजा बंद करके 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक अंदर नहीं बैठोगे। ये न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट आप देखना आज 12 बजे से, but don't take it otherwise. Otherwise you wanted to send me and you won't send, and you will stop yourself unless you really want to stop yourself doing that. What I'm trying to say, if it is making you joyous and if it is moving us inwardly, let us send 108 Happy New Year tomorrow, doesn't matter, but see that it takes us further towards our inward journey. That is my common denominator. Whichever way you can, you must. So our consciousness is basically got caught up, in the wave of thoughts. Last time I told, and then we move forward. We have to move a bit faster today. That whenever you feel you have made a mess of life, consider that you are an illuminator of that mess. And I gave the example of a very mundane example of kitchen. Normally I've seen homemakers talking about mess in kitchen. Generally mess kitchen में ज़्यादा होता है. And on the bed, कपड़े कंघी फेंका हुआ ऐसा इधर, typical. You won't do it in the sofa set of your drawing room. These are 2 places where there is mess of clothes in a bedroom, and typical kitchen, and right from kitchen waste to kitchen source to whatnot to half freeze खुला. अरे फ्रीज उघडा राहायला वाटतं. And friends, in the process we deceive ourselves. The moment you feel the importance of Jeev, Jagat and Ishwar and started these queries, उठते उठते लगना चाहिए कौन है यार. Even if you see your wife and husband, you must see ये तो मुझे कुछ साल पहले नहीं पता थे, कहां से आए, किसने मिलाया. But if you start thinking of their promotions, demotions, स्वभाव, we are caught in the world, the web of thoughts. So there are always 2 approaches. One, when you start getting these questions naturally, हम कहां से आए, कहां जा रहे, naturally, yeah? Don't after listening to a pravachan and then decide today I am going to decide that हम कहां से आए. घर में डिक्लेयर कर दिए तो घर में हाथ मारेंगे सर पर, बोलेंगे तुम कहां से नए आए, तुम यहीं से आए और मेरे सर पे सर बला बैठ के बैठे हो. Don't say that. क्योंकि कहां से आए ये क्वेश्चन फैब्रिकेट नहीं हो सकता है कहीं से बाहर से सुन के, वो अंदर से आना चाहिए. दैट इज व्हाई आई रिपीट फ्रेंड्स, वी आर लॉस्ट इन ऑब्जेक्टिविटी.
In sattvic objectivity also, oh, Swamiji told, think who you are. And now on 31st at 0000 hours, I have decided to think on who am I. Wait for 10 hours and talk to me. That who am and I, everything will be lost in the color and the grandeur of the chamak and dhamak of this world. जीव जगत ईश्वर के इंडिपेंडेंट विचार भी कंडीशनल होते हैं. जीव जगत और ईश्वर, जीव है तमस, जगत है रजस और ईश्वर है सात्विक. इसमें भी, लेकिन जब जीव जगत और ईश्वर की कनेक्टिविटी के बारे में आदमी सोचने लगता है, तब वो त्रिगुणातीत होने की चेष्टा करता है. सिंपल जीव की आप सोचने लगे, हा कसा आला, मी कुठे आलो, हा कुठून आला. नो नो, दैट इज नॉट सो. ये जगत क्या है, ओनली जगत की बात कर रहे हैं, बाद में ढूंढ रहे हो, अरे ये कहाँ मिलता सस्ता, वहां जाना है मेरे. अच्छा, इसलिए तुम जगत के बारे में सोच रहे थे कि ये चीज सस्ती कहाँ मिलती है. और ईश्वर असतो का, हा वेगळा आहे का, खरंच देव असतात का, ऍब्सोल्यूट आहे का, वरती आहे का, सगळ्यांच्या हृदयात आहे का, सात्विक. लेकिन द कनेक्टिविटी ऑफ जीव जगत एंड ईश्वर is neither rajasic, tamasic or sattvic. It is spiritual. I tell you, nobody supports anybody in this world, friends. I have realized it. It's my subjective truth which I am sharing with you. Nobody. Even if you give me 10,000 rupees tomorrow and say that I am supporting Atul sir, your thoughts and you both are wrong. The actions happen not by the impulse of your thought, but by the will of God. करके देख. आदमी अपने बेटे बेटी को सोच के देगा अपना पैसा, और जरूरत पड़ी तो किसी दूसरे को भी उछाल लेगा. ये क्या है? ये थॉट प्रोसेस से हुआ है, ये विल ऑफ गॉड से हुआ है. गंभीरता से सोचो. दो इट इज रेयर, ब्लड इज थिकर देन, it's rare, but it happens. And with the loftier thing, it happens. Suppose a cruel son is not asking, or he is not doing any duties to his father, and if Atul Soman is doing all the seva, I'm just giving an example, and he needs it also, friends, do you think that he will give me what he has got? No, big capital no. He will abuse constantly his son. He will constantly praise me for the Gita Vachan, for the Bhagavatam Vachan, even during his death time, body death. But when with excited framework of my mind, his son and me both will open the Mrityu Patra, we'll find that everything has gone to him. I did 15 years of seva to this old gentleman. I'm just joking. Huh? What is it? And therefore, friends, a true knowledge and true intellect is required to become asammudha. और ये जो मोह है संग्रह संबंधों का, वेट, गीला कचरा, सूखा कचरा, इससे तभी हम बाहर आ जा सकते हैं. And as we grow up from our too littleness, so that the world is no more too much for us, Kshama starts manifesting naturally. पृथ्वी बोलती नहीं है मैं क्षमा करने तुझे छोड़ दिया. पृथ्वी अपने आप क्षमा करती है. भगवान हमें दिन रात करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. हर रोज क्षमा कर रहा है, लेकिन वो क्षमा कर नहीं रहा है, उससे अपने आप हमारे लिए क्षमा हो जाती है. क्या बात है. This is what we have to do. Don't say, I have forgiven you. You will automatically forgive somebody.
आपली जीभ जशी आपल्या दातांना क्षमा करते, कुठलाही राग न ठेवता स्वाभाविकपणे, जैसे हमारी जिह्वा हमारे दंत पंक्तियों को क्षमा करते रहती है, उनके मर्सीलेस बाइटिंग के बावजूद, at times it is so heavy that we are in awkward pain. But I haven't seen a person abusing his own teeth by his own tongue. So as we start moving, as we start living in absolute, we grow in forgiveness naturally. To the extent we move from our relativity to absoluteness, to that extent, forgiveness becomes natural to us. I think, friends, it's very clear. I'm moving a little faster. Because now we have understood Shuddha Buddhi and all that quite elaborately. So let's be friends, let's make a resolution. I am talking in terms of resolutions today, that let's move from the relativeness to the absolute and become natural in the process. So first we become natural, forgiveness becomes natural, then we keep on forgiving others automatically and we become more and more natural. So it is a kind of multiplying process. It's a proliferation in a positive sense, like bacteria or the microbes proliferate. When God forgives us, no friends, He has no choice but to forgive. क्या बात है? We should expand to that level where we have no choice than to forgive. हमारे बेटा बेटी कुछ करते आप करते भले डांटोगे, लेकिन आपका फॉरगिविंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत नेचुरल होता है. मुझे कई सन्यासियों ने कहा है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी इज हाफ ट्रूथ एंड गृहस्थ इज फुल ट्रूथ. कितना सम्मान किया है. शिरडी साईं बाबा कहते थे मैं गृहस्थी संत बनाने आया, और हम सब गृहस्थी होने के कारण मैं ये उदाहरण ज्यादा प्रस्तुत करना चाहता हूं. क्यों? और कई महात्माओं ने ये कहा है क्योंकि इसका एप्लीकेशन उनको उनकी परीक्षा नहीं होती है. ऐसे एप्लीकेशंस में हमारी तुरंत होती है. घर में जाओ युद्ध भूमि, बाहर जाओ युद्ध भूमि, पार्श्वभूमि पृष्ठभूमि सब भूमि भूमि, प्लस अपने ओन चैलेंजेस, रजोगुण तमो षड्विकार. So this forgiveness should come to us naturally, and it will be possible only when we expand. Then comes Satyam. अब सर सत्यम तो हमको पता है. स्पीक, अरे यार वो सत्यम नहीं, रिलैक्स. अच्छा बताओ फिर. अभी लाइन में देखो खटाखट. कौन सी लाइन है अपनी? पंच लाइन कौन सी है? मूविंग फ्रॉम रिलेटिविटी टू एब्सोल्यूटनेस. आज की एक ही लाइन पकड़ के चल लेके जाओ घर. सारे दुख रिलेटिविटी में. लास्ट टाइम मैंने कहा है बहुत अच्छी तरह से, तुलना वगैरह सब हो गया है. आज मैंने रिकैप ज्यादा नहीं लिया. वी हैव टू कंप्लीट दिस स्टैंजा. लेकिन ये छोड़ो मत, सेंटर पॉइंट. अच्छा, सो डू यू मीन सत्यम आल्सो यू आर गोइंग टू टेल इन टर्म्स ऑफ यस. सत्यम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू आर. बट सर हम तो बहुत बुरे हैं. यस, इट इज सत्यम. अच्छे बनने की झूठ कोशिश करोगे तो असत्यम हो जाएगा. अच्छे जब अपने आप बन जाओगे तो वो सत्य रहेगा. देखो दोस्तों, सारी जो ड्रामा अपना चल रहा है ना, ये ड्रामा को एक्सपोज कर दिया है सिंपल लुकिंग स्टैंजा में. That is why never tell people to be good. They can never be if they can't be. Only if at all you are keen, show your goodness, which is natural. If at all I am saying, as Vivekananda ji said, and now 12th of January will be the most memorable day. It is all to be caught and not to be taught. So friends,
That's all what we can do. Give the best, provide the best model in terms of your natural goodness. That's all. Because Satyam is a expression of what you are. And anything deviated from at that particular moment of what you are, rest all is Asatyam. And hence, this Asatyam is discovered in objectivity. And in subjectivity, there is only Satyam, even if you are bad from others' perspectives. कितना सुंदर है देखो दोस्तों, अपन किसी को कभी इसके बाद कभी किसी को कुछ बोल नहीं सकते. अरे वो सत्य उसके लिए आहे. लबाड आहे तो माणूस, त्याच्यासाठी सत्य आहे ते. तुला का त्रास होतोय? तुला लुटलं कोणी, आपको किसी ने लूटा, उसके लिए वो सत्य है. You don't get deceived, no? Somebody duped me. Yes, it is truth for him, one who duped you. And you got duped or deceived is a truth for you. Life is 2 plus 2 is equal to 4. Our next resolution today is we will try to avoid making 2 plus 2 is equal to 5 or 2 plus 2 is equal to 3 this moment onwards. देखो ऐसा आशियाना खिलने वाला है दोस्तों. भगवत गीता सिर्फ क्षमा ही नहीं करती, सिर्फ देते रहती है, सिर्फ देते रहती है. हमें अपना पात्र सशक्त बनाना है. पात्र शुद्धि, पदार्थ शुद्धि, पाक शुद्धि. श्री कृष्णा. So when thoughts have their origin outside, today I'm feeling like we four are sitting in a hall in the presence of Lord Krishna and I'm discussing as if even if we are not seeing each other. I don't know why. Let this feeling continue. So, when these thoughts have their origin outside us, it is asatyam. Please ponder. अपने बाहर का जहां हमारे विचार है, बाहर से आ रहे हैं अंदर, वो असत्य है. और अपने अंदर से जो आ रहे हैं वो सत्य है. इसलिए अभी आपको किसी को डांटना है, इंक्लूडिंग मी, तो मेरे ऊपर चिल्लाओ. वो आपके लिए सत्य है. नो बट अतुल सर के ऊपर कैसे चिल्लाना है? भले गुस्सा आ रहा है लेकिन कैसे चिल्ला कि क्यों 31st को रखा? वो असत्यम है. Because these thoughts are coming from outside, while inside you want to be shouting at me. अरे सर, this is too much. नहीं, this is not too much. ये सत्य है. मला खूप आवडतात लोक रागावणारे, चिडणारे. घरी आम्हाला म्हणतात तुम्ही काहीच कसं काही म्हणत नाही, बोलत नाही. म्हटलं मला बोलायचंच वाटत नाही. जेव्हा वाटायचं तेव्हा करायचो. अहो बोलून रागावून काहीच होत नाही, सांगतो तुम्हाला. कुछ नहीं होता है. आप सिर्फ मुस्कुराओ. अरे अभ्यास से होने वाला है. बिल्कुल मुस्कुराओ, मजाक नहीं कर रहा हूं. अगर प्यार और मुस्कुराहट से बदल नहीं हो पा रहा है, विश्वास करो किसी भी चिल्लाहट से कुछ बदल नहीं आने वाला है. रिवेंज आएगा. कई लोग माता पिता मुझे कहते हैं, he was so good, my son was so good, he went out and he forgot everything. He was waiting for this moment. किती रागील ना. मैंने ऐसा कहा किसी माता पिता को, नो मिस्टर सोमन, इफ यू रियलाइज इट. अरे यार, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यू और मी. The first false thing is you are considering him as your own son. First fault. Second, your expectations. हा माझा हात धरून चालायचा, बायको आल्यावर अजिबातच बोलत नाही. त्या बायकोवर, कारण इन लॉज, मैंने पहले ही बोला, मेरा बच्चा अच्छा है. आज तक मैंने ये स्टेटमेंट नहीं सुना है कि मेरी बहू अच्छी है, मेरे बच्चे नहीं बिगाड़ा बहू को. I am waiting for this moment in the objective world to get to these words from a one single family where he'll say that my son or my daughter changed her husband or his wife. Otherwise, they were good.
सॉरी। बहू ने आया, काम बिगाड़ दिया। जवाई बापू आए, काम बिगाड़ दिया। मेरे अल्लाह, मेरे वालिद। So, talking, thinking relatively is asatyam. I'll give you a beautiful example. हम लोग आकाश की बात करते हैं, when we talk about space, it is सत्यम, वो सत्य है। लेकिन जब आप बोलते हो मैं दिल्ली जा रही हूँ, आई एम मूविंग टू नॉर्थ, कोलकाता इज टुवर्ड्स कोलकाता, किधर इज टुवर्ड्स ईस्ट। अरे नानुगले नमस्कार सैरन साउथ वेस्ट, नो 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 नो, दिस इज असत्यम। The moment we enter the world of relativity, असत्यम है ना, सिंपल। अब स्पेस बोलो बर, कहां जा रहे हो स्पेस में? है कल्पना चावला के बाद आपका नाम स्पेस में जा रहा हूं, वी आर। बट सर लोग क्या कहेंगे, वही तो प्रॉब्लम बता रहा हूं बार बार। 31 को सबसे बड़ा रिजोल्यूशन कर दो, इतने बड़ेपना करा कि एक बार ये लोग क्या कहेंगे को एक बार आप उसको उड़ा दो। मैंने कहा मैं वेटिंग फॉर सम मॅरेज आणि मी सगळे सुरगळलेले कपडे घालून जाणार आहे, ऑलरेडी सांगितलंय तुम्हाला। लोग बाहर का युद्ध टालते हैं और घर में कलह करते रहते हैं। मुझे एक फैमिली ने बताया था, हमारे सत्संग में आती थी, सर बोले जब तक आपके पास बैठते बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला क्या हुआ भाई, आज क्या है, आज मेरा खाना तो हो गया है। अरे 2-4 बार, मैं एक बार पूछ ही लिया मैंने, नहीं जैसे ही घर में जाते हैं बोले कलह चालू हो जाता है। मैंने बोला माता जी आप कलह करना है मेरे पास करो, यहाँ घर में कुछ गलती हो रही है आपकी। नहीं नहीं मेरी कुछ गलती नहीं है सर। मैंने बोला बताओ प्लीज, बुरा नहीं मानना। स्टोरी बताने के बाद में हमने कहा हाँ बाबा आप ही सही, ये मंत्र याद रखो, हाँ बाबा आप ही सही। आज मैं मंत्र बता रहा हूं आपको, ईश्वर कृपा से हो सकता है आपके घर में कलह नहीं है। हाँ बाबा आप ही सही, आप देखो करके। एंड अनलेस देयर इज अ फिजिकल बीटिंग व्हिच इज एन अब्यूज एंड क्राइम व्हिच कैन गेट अ सोशल प्रोटेक्शन, यू डोंट हैव टू वरी, रेस्ट ऑल इज अंडर माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये भगवान टेस्ट ले रहा है, आई भाई नहीं मत बोलो, आई विल से व्हाई नॉट यू, क्योंकि आपको भगवान ने चुना है, और आपको चुना है तो आपको ही तो बनाएगा ना वो। आपको सब गुलाब जामुन सब ठीक रहेगा तो कैसे बनोगे आप? इसलिए घर में कई बार कलह होते हैं, कई बातें होती है, बोलना हाँ बाबा आप ही सही। थोड़े दिन तकलीफ होगी, ये सब रिजोल्यूशन बता रहा हूं दोस्तों, 4-5 पकड़ लो, 4-5 में से 3 अमल में लाओ, 3 में से 1 सक्सेस मिलेगी। आज जबरदस्त देखो क्या चमत्कार होगा 2021 में। और फिर अपन कह सकते कि नया साल अगर कुछ हमने सही में हासिल किया तो हम जरूर कहेंगे नया साल एक दिन मनाएंगे। प्रेमा जी क्या खाना खाने जाएंगे अब, लेकिन वो कब, जब हमने सही में कुछ किया है। नहीं तो कौन सा नया साल और कौन सा ये किती किती एका आले जन्मले आणि मेले। सो फ्रेंड्स, स्पेस इज एब्सोल्यूट बट नॉर्थ साउथ ईस्ट इज रिलेटिव, करेक्ट। तो अभी आज की हमारी लाइन क्या है, खटाखट। रिलेटिविटी में हम जब मूव होते हैं, सापेक्ष वृत्ति जब अपन मूव होते हो, सापेक्ष दृष्टि से हम जीवन जीते हैं, तब हमें सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। और जैसे हम एब्सोल्यूट वे से जाते हैं, जैसे अपन दृष्टि अपनी संपूर्ण ठेवतो, इसीलिए पूर्णमद पूर्णमिदम हम लोग बोलते हैं इस शास्त्र अध्ययन के बाद, की तेव्हा सगळं तुझंच आहे, तुझ्याचकडून आलं आणि तुलाच तुझं समर्पित। हा अजून एक अर्थ आहे पूर्णमदचा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मोर। देन वी मूव टू दमह। आपको देखा क्या, शबा इज एट द बॉडी लेवल, दमह इज कंट्रोलिंग एट द बॉडी लेवल। So as we start forgiving, we will probably start moving. आज बहुत से लोग दमह की बात करते हैं 31 दिसंबर को, ये नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे। वो कितने दिन टिकता है वो पता लगे, लेकिन करते जरूर है, बहुत लोग देखे हमने। दमह का सच्चा अर्थ बताओ क्या है? दमह का सच्चा अर्थ है स्टॉप
wrong interactions with the world. वाह, तभी दम पॉसिबल होगा, नहीं तो दम आपको दमछाक मुश्किल है. That's why they say don't control senses, understand your senses. इंद्रियांचं दमन नाही, इंद्रियांना समजून घ्या. इंद्रिय तुम्हाला आपके इनवर्ड जर्नी को मदद करेंगे. भगवान ने कोई भी चीज ऐसी नहीं दी है जो आपका शत्रु हो सकती है. प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है? ये भी वही है. दोनों पे अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो आपका कुछ काम का नहीं है. वो तो प्रवृत्तीचा आम्ही गुणगान करणार नाही आणि निवृत्तीचं कौतुक करणार नाही. नाही नाही, आय हॅव लेफ्ट दिस. पुरणपोळी, विचार पुरणपोळीचे सारखे. निवृत्ति में आनंद नहीं मिला है, आप जबरदस्ती निवृत्ति कर रहे, खाओ दबा के यार. हैव स्टमक फुल एंड माइंड एम्प्टी. हमने सारी चर्चा की है दोस्तों. मैं माफी चाहता हूं जो लोग उपवास करते हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लूंगा, लेकिन हमसे कभी उपवास जमा नहीं. आपकी शायद इतने महान आप अपनी तपस्या आपकी सबकी है कि आप फास्टिंग करते वक्त आपको कोई भी पदार्थ की याद आते नहीं है. हमने वो अभी तक पहुंचा नहीं है उस मुकाम पे कि हम जिस दिन फास्ट करते हैं उस दिन हमें जरूर उस चीज की याद आ जाती. तो आई एम एट दैट लेवल फ्रेंड्स. टुडे आई एम ऑल्सो कन्फेसिंग एज द फैमिली डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं आता. ये भगवान की कृपा है कि मैंने उपवास क्यों नहीं किया. सब लोग देखते हैं कोई एकादशी चल रहा है, कोई कार्तिक एकादशी का तूफान है. हमें घर में भी बोला जाता है आप कुछ भी नहीं रखते हो. मैं बोला जिस दिन मेरा उपवास नॅचरल, उपासमार खूपदा झाली आयुष्यात, बट वो दमन है, वो नेचुरल थोड़ी है. भगवान को थोड़ी याद किया था, खाना ही नहीं मिला. बचपन में बहुत बार ऐसा होता था. कभी बाहर जाते थे, बाहर काम करते थे, प्रोजेक्ट के काम रहते थे, उस वक्त नहीं मिलता था. तो उपवास घडला, तो केला नाही. आणि देवाचं बिलकुल स्मरण नव्हतं त्यावेळेस. तो सेंस ऑर्गन्स इफ यू वांट टू कंट्रोल नो दिस, यू सी दैट वायरस डिजायर. अभी वायरस की चर्चा चल रही है. ये डिजायर सबसे बड़ा वायरस है. वो पहले इंद्रियों को हल्ला मचाता है. म्हणून सगळ्यांनी जर्नी बघा इथे कैसा है. उन्होंने ऐसा नहीं बोला है क्षमा दमा सत्यम क्षमा, क्षमा सत्यम दम क्षमा. वाह. So we have seen what truth is all about. We have seen what Dhamma is all about. This virus desire moves from now sense organs to a little subtler thing. थोड़ी सूक्ष्म चीज की तरफ जाता है जिसका नाम है मन, माइंड. सेंटिमेंटल हो जाते हैं हम. We are sentimental about sattvic things also. Oh, my Bhagavad missed. Oh, my meditation missed today. If you have missed the meditation and you are emotional about it, you have never meditated till this day. एक तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके कारण आप बीमार है तो भी आपका मेडिटेशन हो सकता है. नहीं सर, वो अचानक रिलेटिव्स आ गए, फिर कहाँ मेडिटेशन. उनको भी बिठाना था. वो क्या कहेंगे, आ गए फिर से, लोग क्या कहेंगे. अरे वो दिन का इंतजार करो जिस दिन आपको बिन मांगे मेहमान आपके घर में आ गए और आपका कोई सात्विक कार्यक्रम का प्लान था, उनको उधर बिठा दो या फिर आप निवृत्त हो जाओ. देखा जाएगा क्या होता है. तो एक बार होने ही दो यार. एक्सपेरिमेंट्स करो डेयरिंग लाइफ में. सिक्योर्ड लाइफ में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है. मैं बार बार कह रहा हूं. One has to be insecure somewhere, friends. Then only that God and that God principle will enter in your life permanently. Otherwise, it is just a thought process, and this is not an intellectual samudra manthan. Sorry. You can be good, you may not be divine in the process. And therefore, this virus called desire first attacks sense organs. So you need to have damaha. And then you have shamaha. So you have to control your mind. You have to understand your mind. Again, the control word is not correct.
एंड देन इट एंटर्स इंटेलेक्ट, बुद्धि में ये वायरस जाता है और आपके रीजनिंग को ब्लॉक कर देता है. आई बोरो 5 minutes at your end because we started late. Though we started at 7, I was waiting for others to join. तो शमः इज एट द माइंड एंड इंटेलेक्ट लेवल. मन और बुद्धि को जो समझने की प्रक्रिया है उसको शम कहते हैं. इंद्रियों को समझने की जो प्रक्रिया है उसको दम कहते हैं. उसके पहले एब्सोल्यूट में जीने की जो प्रक्रिया है और रिलेटिव वर्ल्ड में सापेक्ष की दुनिया से हटने की जो प्रक्रिया है उसे सत्यम कहते हैं. और आपके बहुत छोटे होने से बड़े होने की जो प्रक्रिया है उसमें क्षमा अपने आप आपके साथ जुड़ जाती है और आप मोह से दूर हो जाते हो. वो है शुद्ध बुद्धि और शुद्ध ज्ञान. पहली लाइन समाप्त. सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च. नाउ these are relative things. We can see them in one sweep. एक झटके में हम उनको देखने वाले. सुखम दुखम. ख मीन्स आकाश. सुख और दुख का आकाश को कुछ परिणाम होता है क्या? अरे हाँ, नहीं. मैंने आपको एक बार कहा था मन को आकाश में लगाओ, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे. कोई भी पहले आता है मेरे पास काउंसलिंग के लिए, बड़े छोटे, मैं बोलता हूं मन आकाश में लगा दो. अरे सर ये कैसे लगा? अरे घर के बाहर जाओ यार, और बाहर जाके दूसरी चीजें मत देखो, वो माया वहां आपको सता सकती है. आकाश, मन को आकाश में लगा दो बिंदास. खुले मैदान में जाओ और आकाश में लगा दो. महाराष्ट्र मंडळात जा आणि काही न खेळता आकाशाकडे बघत बसा. 8 दिवस करा. काय काय तुमची रिॲक्शन होते सांगा मला पुढच्या काळात. तुम्ही म्हणाल सगळंच गेलो, सगळंच खोटं होतं, आणि आनंदाने सांगाल. आप आनंद से बताओगे, कोई साधना की जरूरत नहीं खास इधर उधर की. ख मीन्स आकाश. तो सु और दु दोनों एक ख में होता है. काय के लिए चिंता करना है? अच्छा, ऐसा मतलब है इसका. दुर्गंधही त्याचा आणि सुगंधही त्याचा आहे. हे आउटर स्पेसच्या गोष्टी आहेत. दीज आर ऑफ आउटर स्पेस. सुखम दुःखम. देन भवो भावो, ये बहुत अच्छी चीज है. भाव और अभाव. आज 4 मेंबर्स आए नहीं है अपने रेगुलर आने वाले. अभी मैं टेबल टॉप पे लेक्चर लेता हूं, इसलिए मुझे कौन आया दिखता है. देखो ये मेरा डिजेनरेशन हो गया. मोबाइल पे मैं जब तक नहीं देखूंगा मुझे समझता नहीं था ना. यहाँ मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है कौन आया और कौन नहीं है, उपस्थित है. अब मैं क्या कर रहा हूं? अभाव की बात कर रहा हूं. तो अभाव कुछ है ही नहीं, उनका प्रेजेंस नहीं है, ये अभाव है. मतलब उनका प्रेजेंस ही है. जैसे मैंने कहा था नास्तिक कोई नहीं है, क्योंकि न आस्तिक इज नास्तिक. उसमें आस्तिकता है ना. देयर इज नो गॉड में गॉड है, मतलब गॉड ही है. और इसलिए दोस्तों अभाव और किसी का प्रेजेंस, किसी का एब्सेंस, ये दोनों ही भगवान की ही उपस्थिति में होते हैं. किसी चीज का अभाव तभी हो सकता है जब उसका भाव आपको पता है. मैं क्यों बोल रहा हूं 4 मेंबर्स एब्सेंट है और अभी 5 हो गए? क्योंकि वो कभी उपस्थित थे. ऐसा कोई 10वां मेंबर है क्या? क्योंकि वो कभी उपस्थित था ही नहीं, तो उसका अभाव कैसे होगा? अभाव उसी चीज का होता है जब किसी चीज का भाव पहले हो, और ये चीज ध्यान में. और अंत में भय और अभय, fear and fearlessness, both are required. Fearlessness is required for not doing bad things. I'm sorry, fear is required for not doing bad things, and fearlessness is required for doing good things all the time, irrespective of anything in our life. Can we have resolutions today on all this what we mentioned? If yes, friends, we are moving towards our inward journey. हमारी अंतस यात्रा की शुरुआत हुई है, और इसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है ये आगे के 2 स्टैंजा में जब देखा जाएगा वो हम अगली बार देखेंगे. सैटरडे को मुलाकात की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह.
अगर नहीं हो पाई तो मंडे को मुलाकात होगी अपनी इन्हीं शब्दों के साथ में। और आप सभी को कैलेंडर न्यू ईयर, जिसका फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, एक दूसरी तारीख है सिर्फ, लेकिन अगर इस तारीख का इतना हल्ला गुल्ला बाहर की दुनिया में है तो हम भी उसका हमारी अंतस यात्रा के लिए प्रेरणा लेके कुछ अच्छे संकल्प हमारे लिए ईश्वर के चरणों में बैठकर बनाए, जो कि हमारी बाहरी यात्रा से अंदर की यात्रा की तरफ हमारी ज्यादा अच्छी जर्नी हो। यही शुभाशीष हम परवरदिगार से प्राप्त करते हैं और आज के लिए विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो। नारद जी और हनुमान जी के आशीर्वाद भी हमारे साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि नया कैलेंडर ईयर